So whenever the word of God comes to you, it inspires you in the spirit. When you are isolated with the Lord, I'm telling you, that is very powerful. God chose David to kill Goliath because God saw David killing lions in private. What you do in private is very, very important, because what you pray in private, God shows you, expose you in public through the way he works through you. At the same time, tell your neighbor, flip side, what you do sins in private, that also gets exposed in public. For the word of God is living and active and full of power. Everyone say full of power. संपूर्ण सामर्थ से, Full of power. संपूर्ण सामर्थ से. So that means whenever the word of God comes, तो जब कभी परमेश्वर का वचन आता है, it is living, वो जीवित है, it is active, वो प्रभावदायी है, and it is full of power. वो पूरी सामर्थ से है. So such word will make you inspired in the spirit to take certain decisions. तो ऐसे वचन जो है आपको तैयार करते हैं, आपको जो है उत्तेजित करते हैं ताकि आप कुछ निर्णय को ले सके. Are you understanding? क्या आपको समझ में I है? gave the example of this hall on Wednesday, और मैंने आपको उदाहरण दिया था इस हॉल का, जैसे that I used to come for a night walk over here in this place outside. और मैं आपको बताया था कि रात को टहलने के लिए मैं इस जगह पे आया करता था. And when God gave me the word, that God said, Abram, whichever land, whichever you step in, I will give you that land. और परमेश्वर ने अब्राहम से जैसे बताया था कि जहाँ कहीं भी तू कदम रखेगा वो जगह तुझे दे दूंगा. And I saw this glass, और मैंने इस ग्लास को देखा. and I kept declaring that word, kept speaking that word, and within 7 days the agreement was ready for us. और जैसे मैं वहाँ पे घोषणा करते रहा तो मैंने देखा कि वो एग्रीमेंट जो है 7 दिनों में तैयार हो जाए. Are you understanding? Listen to me, people of God. ध्यान से सुनो प्रियो. अगर प्रभु का वचन आपके पास प्रार्थना में आता है, अगर आप आत्मा में उत्तेजित नहीं हो रहे हो, अगर आप आत्मा में और ठंडे पड़ गए हो, वचन सुनकर और उदास हो गए हो, I'm telling you, people of God, you need to understand that what God is speaking to you. तो आपको जानना है कि परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहे हैं. हमेशा मुझे पीस लग रहा है ब्रदर, क्योंकि तेरे को अच्छा लगा सुनने के लिए. अगर तुमको वहां पे कोई ताड़ना आई, करेक्शन आई, नहीं, आई रिब्यूक इट इन द नेम ऑफ जीसस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आप समझ रहे हैं? हाँ. मेनी पास्टर्स आई हैव हर्ड टेस्टिफाइंग, मैंने देखा है बहुत से पासवानों को गवाही देते हुए, when God told them to do something, जब परमेश्वर ने उनसे कुछ कहा करने के लिए, the first thing they thought that it is devil. तो सबसे पहली चीज उन्होंने सोची कि ये शैतान है. Oh, God cannot talk like, God cannot tell me to leave my job. परमेश्वर मुझे कभी नहीं कहेगा कि मैं मेरी नौकरी छोड़ दूं. Rebuke it in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से उसे धमकाता हूं. They used to say like that. वो ऐसे कहा करते थे. Now this is, I'm talking specifically, you don't leave your job. I'm giving you an example. मैं बस उदाहरण बता रहा हूँ खास करके. But when they took that step, और जब उन्होंने उस कदम को उठाया, God blessed them so much, which can be 10 times more than their CTC. तो परमेश्वर के लोगों में आपसे कहता हूँ कि उन परमेश्वर ने उनको इतना आशीषित किया कि वो 10 गुना. God comes to you, तो जब कभी परमेश्वर का वचन आपके पास आता it है, inspires you in the spirit, तो वो आपको प्रेरित करता है. and you feel that energy, you feel that the power of God, something is happening inside you. तो आप आपके सामर्थ को जो है महसूस कर पाते हैं कि आपके अंदर कुछ तो हो रहा So है. that is not utavlapan, that is the enthusiasm of God. ये परमेश्वर की जो जुनून होता है जो परमेश्वर आपके अंदर डालता है. Are you understanding? As I'm preaching the word right now, और जैसे मैं परमेश्वर के वचन many को of you are inspired inside you right now. बहुत से जो लोग हैं वो जो है उतावले महसूस कर रहे हैं, उत्तेजित हो रहे हैं आपके मन के अंदर इस वक्त, और वो उत्तेजना प्रभु की ओर से है. The last is isolation. आखिरी जो है खुद को अलग करना. Very sensitive. बहुत गंभीर. Isolation. क्या है? क्या बोला ट्रांसलेट किया? हाँ? खुद को अलग करना. खुद को अलग करना, अकेलापन. Isolation. Now, people of God, isolation sometimes can be dangerous. Isolation sometimes also can turn into a blessing as well if you do it properly. अगर आप उससे अकेलेपन को ठीक से करें तो वो आपके लिए आशीष भी बनता है या फिर आपके लिए वो खतरनाक भी बनता है. If you are completely isolated of yourself. अगर आप खुद से पूरी तरह से अलग बन चुके हैं. So I want to give you an example. A lion will never attack its prey when it is in group. और मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि शेर प्रे मतलब ये नहीं, प्रे मतलब
अपना शिकार को कभी भी जो भी ग्रुप में है उसको कभी अटैक नहीं करता है जल्दी, लेकिन अगर अकेला मिल जाए, नेशनल ज्योग्राफी देखो, डिस्कवरी देखो, आपको पता चलेगा दैट दे विल अटैक व्हेन द प्रे इज अलोन जब कोई शिकार अकेला एंड होता है ही तब वो ईट्स शिकार द मील करता है। विदाउट प्रेइंग. लिसन टू मी मुझे केयरफुली, ध्यान से सुने, पीपल ऑफ गॉड. परमेश्वर के लोग At the same time, उसी समय when you are isolated with the Lord, जब आप परमेश्वर से अकेले खुद को अलग करते I'm हैं telling you that is very powerful. तो ये बहुत सामर्थ्यशाली, Very powerful. ये एक बहुत सामर्थ्यशाली है। God chose David to kill Goliath because God saw David killing lions in private. क्योंकि परमेश्वर ने दाविद को इसलिए चुना गोलियत को हराने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि दाविद जो है सिंहों को जो है अकेले में मार रहा है। When he was alone, when nobody was watching him, he was killing those lions, those who were attacking the sheep in private, not to put it on Instagram. और वो देख रहा था, परमेश्वर देख रहा था कि वो सिंहों को जो है अकेले मार रहा था जब उसे कोई देख नहीं रहा था, इसलिए नहीं कि इंस्टाग्राम पे कोई उसे देखे। Not to ding marify by to other friends. Oh, देख आज मैंने 2 को टपका है. No, it was private. Tell your neighbor it was private. सिखाए वो रहस्यमय था। What you do in private is very, very important. जो आप रहस्यमय रूप से करते हैं वो बहुत जरूरी होता है। Because what you pray in private, God shows you, expose you in public through the way He works through you. क्योंकि जो प्रार्थना आप प्राइवेट रीति से करते हैं, रहस्यमय रीति से करते हैं, परमेश्वर उसे खुलासे में लाता है सबके सामने। At the same time, tell your neighbor, flip side. और उसी तरह से अलग दिशा में What you do sins in private, जो आप गुप्त रीति से पाप करते हैं, that also gets exposed in public. वो भी सबके सामने खुलासे में आते हैं। It is not hidden. वो कभी छुपते नहीं। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? That's the law. ये परमेश्वर का That's सिद्धांत the है। principle. ये परमेश्वर का सिद्धांत। Nothing can be hidden. कोई भी चीज छुप नहीं सकती। Nothing can be hidden. कोई भी चीज छुप नहीं सकती। The CCTV which we have is that CCTV is much more powerful. ये सीसीटीवी हमारे पास है, लेकिन उसका सीसीटीवी इससे भी बेहतर है। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? So isolation, तो खुद को अलग करना, doing things in private. गुप्त चीजों को करना। What you do in private? जो चीजें आप गुप्त रीति से करते हैं, Are you praying in private first, or are you praying in the intercession just to show that how much you can pray? क्या आप गुप्त रीति से पहले प्रार्थना करते हैं या फिर सिर्फ मध्यस्थी के रूप में जो है आप प्रार्थना करते हैं सिर्फ दिखावे के लिए? या फिर आपको अगर प्रार्थना करने के लिए बोले तो आप बहुत ज्यादा प्रार्थना करोगे, लेकिन आपका प्राइवेट प्रार्थना किधर है? Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? Where is your private prayer? आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना Are कहाँ है? you're taking good songs over here or somewhere else, but are you worshiping the Lord in private? आप अच्छे गीत यहाँ पे गाते हैं, वहाँ पे गाते हैं, लेकिन क्या आप परमेश्वर की आराधना ठीक से कर रहे हैं? हेलो, पड़ोसी को बोलो बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है, लगने दो. लगने दो। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? You can do everything in public. आप पब्लिक में सारी चीजें कर You सकते can हैं। come on a Zoom call and pray for 100 hours. आप जो है जूम कॉल पे आपकी 100 घंटे के लिए प्रार्थना कर सकते But हैं, are you praying in private? लेकिन क्या आप गुप्त रीति से That प्रार्थना करते हैं? isolation is very important, people of God. वो खुद को अलग रखना बहुत जरूरी परमेश्वर के लोगों। Do you think that this is built only basis the public performance? और ये क्या आपको ऐसे लगता है कि इसे पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए इसे बनाया गया है? It is also built in the private prayer. ये गुप्त रीति से प्रार्थना में भी बनाया गया है। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? People of God, what you do in private, God rewards you in public. जो आप गुप्त रीति से करते हैं, परमेश्वर उससे जो है सबके सामने खुलासे में Oh, लेके आता only है। one person clapped. Only one person is believing, I think so. Only one person. No. One is to so many. Private prayers are very important. गुप्त प्रार्थना बहुत जरूरी होती है। Can I tell you why it is important? और मैं आपको बताता हूँ ये क्यों जरूरी होती है। When Apostle John, जब प्रेरित यूहन्ना tell your neighbor 3 minutes. पड़ोसी से कहे सिर्फ 3 मिनट, 3 minutes. सिर्फ 3 मिनट। These guys will make a reel on me now. When Apostle John, how many of you know there is something called Book of Revelation in Bible? और कितनों को पता है प्रगटीकरण का एक किताब है कभी खोला है प्रकाशित आपने? का वचन? खोला है आपने? या कमत्ते मार्क लुक जॉन यिर्मयाह साम्स 23 बस इतना ही, मटन मच्छी चिकन इतना है, उसके आगे कुछ नहीं, काजू बादाम नहीं चाहिए अपने को. Revelation chapter 1 and verse 10.
Revelation chapter 1 and verse 10 प्रकाशित वाक्य इसका पहला अध्याय and 10. Now before you read, before you read this, और इसे पढ़ने से पहले I want to give you a background behind this. मैं आपको इसके पीछे का पार्श्वभूमि बताना The चाहता हूँ। book of Revelation was written by Apostle John, inspired by the Holy Spirit. और ये किताब जो है अपोस्टल जॉन के द्वारा लिखी गई है परमेश्वर की आत्मा के प्रभाव What में। you see happening right now is everything mentioned in the book of Revelation. और जो भी चीज आप आज होते हुए देख रहे हैं वो सारी चीजें इस किताब में लिखित है। And I want to tell you, और मैं आपको बताता हूँ isolation is how much powerful. मैं आपको बताता हूँ कि खुद को अलग रखना कितना महत्वपूर्ण है। When कितना in the सामर्थ्यशाली book of Revelation, John was in the island called Patmos. और प्रकाशित की किताब में हम देखते हैं कि यूहन्ना एक आइलैंड पे है जिसका नाम है पैटमॉस। Patmos. Everyone say Patmos. सब कहे पैटमॉस। So he was on the island called Patmos, and now read the word. कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरई Yes, का yes. सा What happens when you're alone? और क्या होता है जब आप अकेले होते हैं? What happens when you're alone? क्या होता है जब आप अकेले होते हैं? Read the word for again. कि मैं प्रभु मैं- के दिन आत्मा में आ गया आत्मा में आ गया. Now listen to me carefully. When you are alone with the Lord, you are walking in the Spirit. जब आप परमेश्वर के साथ अलग होते हैं तो आप परमेश्वर में आत्मा में एक चाल चलते Can हैं। anyone read in English? How it is written in English? I was in the Spirit. Why he was in the Spirit? Because he was alone over there. और वो क्यों आत्मा में था? क्योंकि वो अकेला था उस समय परमेश्वर के साथ। Are you understanding? People of God, I want to tell you, परमेश्वर के लोगों मैं आपसे कहता हूँ, no matter how much busy you are, भले ही आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, if you cannot get alone with God, you cannot walk in the Spirit. अगर आप परमेश्वर के साथ अकेले नहीं हो सकते तो आप आत्मा में नहीं चल I सकते। want to make a bold statement. मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, If you धैर्य रूप cannot get alone with the Lord, you are not Christian. से। अगर आप परमेश्वर के साथ अकेले नहीं रह सकते तो आप मसीह भी नहीं है। You are not a Christian if you cannot be alone with God. आप परमेश्वर के साथ अगर अकेले नहीं रह सकते तो आप मसीह भी नहीं है। चलो नहीं, बस चुप रहा है, चुपने दो. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? If you cannot be alone with your Creator, what is wrong with you? अगर आप आपके रचना कर्ता के साथ अकेले नहीं रह सकते तो आपके साथ बुराई के आपके में कुछ तो बुराई है। बुराई नहीं, कुछ तो गड़बड़ है. Are you understanding? Because I told you that if you cannot give 1 hour fully, मैंने आपको बताया था कि अगर आप पूरा 1 घंटा नहीं दे सकते or if you cannot give 30 minutes fully, या फिर आप 30 मिनट पूरी तरह से नहीं दे at सकते least give 5 minutes every hour. तो हर घंटे में 5 मिनट तो दे दो। Are you understanding? He is not holding a stick in his hand that you sit 1 hour. इधर ही ट्यूशन पे नहीं बिठाते वो अपने को. But at least give 5 minutes every hour. Put an alarm. लेकिन लगभग 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, एक अलार्म Or लगा put दो। an alarm of every 2 hours or every 1 hour. Put an alarm and pray for at least 2 minutes or 3 minutes. हर 1-2 घंटे बाद या फिर 1 घंटे के बाद अलार्म लगा के प्रार्थना करो 2-3 Many मिनट के people लिए। ask me, Pastor, why does your phone ring at 10 o'clock at night? और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि How पासवान many of जी, you have seen my phone rings at 10 o'clock at night? कितनों ने That देखा? alarm. बोलते हैं 10 वाजता से सोने का अलार्म है क्या उठने का अलार्म है? रात को 10 बजे. So this is what I'm preaching is not because I have good notes. I'm preaching because I follow that. और मैं आपको इसलिए नहीं प्रचार कर रहा क्योंकि मेरे पास अच्छे नोट्स है, लेकिन वो मैं इसे फॉलो भी करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। So if you cannot sit for 1 hour fully, अगर आप 1 घंटे के लिए पूरी रीति से नहीं बैठ at सकते least pray for 5 minutes every hour or 2 minutes, 3 minutes every hour. तो हर घंटे में 2 से 3 मिनट या फिर 5 मिनट के लिए प्रार्थना करो। Are you understanding? क्या आप समझ रहे When you हैं? do this, क्या आप इसे करेंगे? the word of God says, परमेश्वर का वचन ये कहता है, John was alone at the Patmos island. यूहन्ना पैटमॉस उस आइलैंड पे अकेला था, And when he was island, और जब वो अकेला था he says, my day was with the Lord and I was in the Spirit. वो कहता है कि वो दिन में वो अकेला था परमेश्वर के साथ, वो आत्मा में आ गया। So people of God, when you sit for any meeting, जब आप किसी मीटिंग के लिए बैठते हैं when you meet someone, या फिर किसी के साथ मिलते हैं, and if God is giving you opportunity to pray for a sick person, you don't have to say, wait, let me fast and pray for 24 hours and then come back. No, you lay hands and the person is healed. और अगर परमेश्वर आपको मौका देता है कि आप किसी जो है बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, तो आपको ये नहीं कहना है कि रुको मैं उपवास करके आता हूँ, लेकिन आपको बस हाथ रखना है और वो चंगा हो जाएगा। Are you understanding? क्या So समझ रहे हैं? when you are going for an interview, जब किसी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, you don't have to you don't have to do that because your lifestyle is prayer now. You don't have to just do aerobics over there. You are just sitting there and it flows. Tell your neighbor, it flows. कहे कि वो बहता है। But if there is kachra stuck,
क्योंकि and there is nothing to flow, how will it flow? अगर वहां पे कचरा अटका हुआ है तो वो कैसे बहेगा? बहुत लोग पाइपलाइन को ही रेडी नहीं रख रहे, तो कैसे बहेगा? So prayer is a channel for God's power to flow in your life. तो प्रार्थना एक जरिया होता है जहां से परमेश्वर का आत्मा, उसका सामर्थ वहां से बहता है।